بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو اوورسیز ریئل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نیو اوورسیز ریئل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے لیے پاکستان ریئل اسٹیٹ کی موسٹ اپڈیٹڈ نیوز، اپڈیٹس، انالیسز اور اسسمنٹس لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم جس سوسائٹی کی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے پاک ویو سٹی اسلام آباد۔ پاک ویو سٹی اسلام آباد کی آج کل پاکستان ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت دھوم ہے، اور خاص طور پہ ڈفرینٹ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اس سوسائٹی کے حوالے سے اوورسیز کلائنٹس کو اور لوکل ریئل اسٹیٹ انویسٹرز کو بہت زیادہ موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اپنی تمام ڈسکشنز کے اندر جہاں پر بھی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں ان کے پازیٹیوز، نیگیٹیوز، ایک بیلنس پوائنٹ آف ویو دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں اپنی ڈسکشنز میں۔ سو آج بھی ہم آپ کو تمام پازیٹیوز بھی ڈسکس کریں گے پاک ویو سٹی اسلام آباد کی، اور کچھ اس کے ساتھ نیگیٹیوز بھی ڈسکس کریں گے کہ کس حوالے سے اس سوسائٹی کے اندر ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹھیک ہے، اور کون سے اس کی ایسے پوائنٹس ہیں جن کی بیسس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ایک لانگ ٹرم پوائنٹ آف ویو سے انویسٹمنٹس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ سو سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن دیتے ہیں آپ کو پاک ویو سٹی اسلام آباد کا۔ پاک ویو سٹی اسلام آباد کو CDA سے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے NOC ملا ہے 2018 میں، جب پاکستان کے اندر گورنمنٹ چینج ہوئی، نون لیگ سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی۔ اس سے پہلے پاک ویو سٹی اسلام آباد نے اپنی تمام لینڈ ایکوزیشنز کی ہوئی تھیں، اور CDA میں اپروولس کے لیے بھی انہوں نے اپنے کیسز فارورڈ کیے ہوئے تھے، لیکن بیکاز آپ سب لوگ شاید جانتے ہیں اس حوالے سے کہ پاک ویو سٹی یہ پروجیکٹ ہے علیم خان صاحب کا، جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں۔ شاید اس وجہ سے ان کو تمام صحیح کام کرنے کے باوجود بھی بیکاز آف سم پولیٹیکل ریزنز ان کو اس سوسائٹی کی اپروولز نہ مل رہی ہوں، لیکن جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو پاک ویو سٹی اسلام آباد کو CDA سے تمام اپروولز جو ہیں وہ مل چکی ہیں، اور ان کی جو NOCs ہیں وہ CDA کی ویب سائٹ کے اوپر بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور وہ وہاں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ پاک ویو سٹی اسلام آباد یہ پروجیکٹ ہے ویژن گروپ کا، جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ یہ علیم خان صاحب اس کے چیئرمین ہیں۔ اس سے پہلے پاک ویو کے کچھ پروجیکٹس لاہور کے اندر لانچ ہوئے، جیسا کہ پاک ویو لاہور کا ایک پروجیکٹ تھا جو کہ بعد میں DHA گجرانوالہ نے فیز 8 جو ہے DHA گجرانوالہ کا، وہ DHA گجرانوالہ نے ایکوائر کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک ویو ولاز کا بھی ایک پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا۔ تقریباً 10 سال ان کو ہو چکے ہیں اس فیلڈ کے اندر، اور کافی اچھے پروجیکٹس بھی انہوں نے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے اندر آفر کیے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنیز کے ساتھ، تو یہ ہم اس کو ایک میڈیم سائز ریئل اسٹیٹ کمپنی، ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی لارج اسکیل پروجیکٹس ایز سچ ان کی طرف سے ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ اگر ہم کسی بھی سوسائٹی کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو دیکھنے والی ہوتی ہے وہ اس کی لوکیشن ہوتی ہے۔ سو لوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں تو لوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو بہت اچھے پوائنٹس دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کی لوکیشن ون آف دا بیسٹ لوکیشنز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو 0 پوائنٹ سے ایکسس لینا چاہیں تو اراؤنڈ 15 to 20 منٹس کے ڈرائیو کے اوپر 0 پوائنٹ سے اس کا ایکسس ہے۔ راول چوک کے اوپر بڑا ایک میگا پروجیکٹ بھی اناؤنس ہو چکا ہے، انڈر پاسز اینڈ اوور ہیڈ بریجز کا، جس میں وہ راول چوک کے اوپر ایک انٹرچینج اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس سوسائٹی کا ایکسس جو ہے وہ اس پہلے سے بھی بہتر ہو جائے گا۔ یہ بنی گالا کے اندر واقع ہے، اور بنی گالا میں اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس کی بیک سائڈ کے اوپر بوٹینیکل گارڈنز ہیں تقریباً 1700 ایکڑ کے اوپر۔ بوٹینیکل گارڈنز جو ہیں یہ محکمہ جنگلات کی جگہ ہے، اور یہ محکمہ جنگلات کی جگہ ہونے کی وجہ سے تو اس پہ فیوچر میں کوئی چانسز نہیں ہے کہ کبھی بھی اس کی بیک سائڈ کے اوپر کوئی اور سوسائٹی اسٹیبلش ہو سکے۔
इस वजह से इसका जो इन्वायरमेंट है, इट हैज़ अ वेरी सीरीन एंड एक्सोटिक इन्वायरमेंट, और काफ़ी नेचुरल इन्वायरमेंट है। और इस नेचुरल इन्वायरमेंट की वजह से और इसकी लोकेशन को, जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ लोकेशन की वजह से हम इसको बहुत अच्छा कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम इसके प्लॉट साइजेस के हवाले से डिस्कस करें तो 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स इन्होंने ऑफर किए हैं, और मैप इनका अनाउंस हो चुका है। और मैप अनाउंस होने का फ़ायदा ये होता है कि आप डायरेक्ट प्लॉट, आपको पता होता है कि आपका प्लॉट जो है वो कौन सी लोकेशन के ऊपर वाक़ है। फाइल्स नहीं बिकती। बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि जब आपने फाइल्स खरीदी होती हैं किसी प्राइवेट सोसाइटी की, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। जब वो मैप अनाउंस करते हैं तो बाज़ औक़ात उन्होंने ऐसी फाइल्स भी दी हुई होती हैं जिनकी अभी उन्होंने लैंड एक्वायर नहीं की हुई होती, तो इस वजह से बहुत सारे इश्यूज प्राइवेट सोसाइटीज़ में देखने को मिलते हैं। लेकिन इस सोसाइटी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी है कि इन्होंने मैप अनाउंस किया है, और मैप अनाउंस करने के बाद अभी जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट्स करेंगे लोग, उनको और प्लॉट जो है वो मिलेगा। सो 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स इन्होंने ऑफर किए हैं। इसके साथ अगर हम कमर्शियल प्लॉट्स को देखें तो 6 मरला और 8 मरला की कमर्शियल प्लॉट कैटेगरी अनाउंस की गई है। टोटल एरिया इस कम्युनिटी का वो 1200 कनाल है। और अगर हम इसकी प्राइसेस के हवाले से डिस्कस करें तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं वो 5 मरले का 50 लाख रुपए के अंदर, और 10 मरले का 85 लाख रुपीस के अंदर, और 1 कनाल का 1.5 करोड़ रुपए के अंदर जो प्राइस इन्होंने डिफाइन की है। और उसमें जो पेमेंट स्कीम है वो पेमेंट स्कीम फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट्स प्लान इन्होंने ऑफर किए हैं। इनमें इंस्टॉलमेंट्स के अंदर 10% के साथ आपकी बुकिंग है, और 10% डाउन पेमेंट है, और फिर 10% आपकी बुकिंग के चार्जेस हैं, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 3 इयर्स की क्वार्टरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करनी है। अगर हम कमर्शियल कैटेगरी के अंदर बात करें तो 6 मरले का प्लॉट जो है वो 4 करोड़ 20 लाख रुपए का, और 8 मरले का प्लॉट 6 करोड़ 85 लाख रुपए का इन्होंने अनाउंस किया। और उसमें भी आगे फर्दर इसी तरीके से इंस्टॉलमेंट्स प्लान जो है, फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट्स प्लान इन्होंने ऑफर किए हैं। किसी भी अच्छी कम्युनिटी की जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो तमाम फीचर्स इन्होंने अनाउंस किए हैं अपने मास्टर प्लान के अंदर। इनके मास्टर प्लान के अंदर जामिया मॉस्क है, कम्युनिटी सेंटर है, पार्क्स हैं, और इसके साथ IMAX है, एक सिनेपैक्स वो इस्टेब्लिश करेंगे। और इन सारी चीज़ों के साथ जो एक बहुत ही अट्रैक्टिव इन्होंने एक सेलिंग पॉइंट रखा है वो है इनका डाउनटाउन एरिया। इन्होंने कमर्शियल का जो भी एरिया है वो एक साइड के ऊपर दिया है, और बाकी जो रेजिडेंशियल एरिया है वो ऑन द अदर साइड है। सो कमर्शियल एरिया ये नहीं है कि हर सेक्टर के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर इन्होंने अलग अलग कमर्शियल एरियाज जो है वो इस्टेब्लिश किए हों। कमर्शियल एरिया के लिए एक सेपरेट लैंड वो इन्होंने एलोकेट की है, और पूरी सोसाइटी जो है उसका कमर्शियल एरिया एक ही होगा, और उस एरिया को डाउनटाउन एरिया के नाम से इन्होंने रखा है। और इसको इस्लामाबाद डाउनटाउन का भी कॉन्सेप्ट जो है वो दे रहे हैं। और ये इनकी दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिंग फीचर, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत जो कमर्शियल वॉक के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये अपने डाउनटाउन एरिया को इस्टेब्लिश करेंगे। उसमें तकरीबन 20 कनाल की एक लेक है, और उस लेक के अराउंड जो है वो पूरा कमर्शियल एरिया इन्होंने इस्टेब्लिश करना है। सो उसमें हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, और उसके साथ तमाम जो मेजर ब्रांड्स हैं, इनके कहने के मुताबिक तमाम मेजर ब्रांड्स ने अपनी अपनी बुकिंग्स जो है वो इनके कमर्शियल एरिया के अंदर करवा ली हैं, और वो इनका कमर्शियल एरिया इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर सेलिंग फीचर ऑफ दिस सोसाइटी। जी, ये तो हैं सारे इनके बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स। अब इसकी थोड़ी सी ऐसी डिस्कशन कर लेते हैं जिसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि आइदर इस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं। और ये तमाम गैस है, इसके अंदर हम कोई श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि इसमें आइदर इट्स गोइंग टू बी कि बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट होगी या बहुत ही जो है वो
इतनी शायद अच्छी इन्वेस्टमेंट ना हो। मैं जब भी इसकी एनालिसिस करता हूँ तो मैं इसके अराउंड जितने भी और सोसाइटीज़ हैं उनको मैं देखता हूँ और उसमें उनकी लेवल ऑफ कम्युनिटी को देखता हूँ और लेवल ऑफ कम्युनिटी के साथ उनके प्राइसेस को देखता हूँ और उसके साथ प्रीवियस जो एक ट्रेंड होता है उनकी प्राइसेस का उसको ऑब्जर्व करता हूँ। सो इसको अगर हम कंपेयर करें तो इसके बिल्कुल साथ बहरिया इनक्लेव है। बहरिया इनक्लेव 2011-2012 के अंदर लॉन्च हुआ और ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ सोसाइटीज़ हैं। और बहरिया इनक्लेव को अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो बहरिया एक तो बहुत बड़ा नाम है एज कम्पेयर टू पार्क व्यू, और दूसरा ये कि अगर उनकी पिछले 3 साल की प्राइसेस को ऑब्जर्व करें तो पिछले 3 साल की प्राइसेस के अंदर कोई मेजर फ्लक्चुएशन नहीं आई, ऑलमोस्ट स्टेबल प्राइसेस हैं। जब वो लॉन्च हुआ तो 2016 के अराउंड उनके अंदर एक बहुत बड़ा एक गेन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद से 2017 till 2020 तमाम प्लॉट्स जो हैं वो तकरीबन एक ही सेम प्राइस के ऊपर वो चल रहे हैं और उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला। और अगर आप बहरिया इनक्लेव के अंदर इन्हीं प्लॉट्स, इन्हीं कैटेगरीज के अंदर प्लॉट्स की प्राइसेस को कंपेयर करें तो बहरिया इनक्लेव की जो इस वक्त मार्केट प्राइस है, अगर आपको फॉर एग्जांपल 1 कनाल का प्लॉट लेना है तो वो आपको अराउंड 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान, बाज़ का थोड़ा सा कम भी आपको 1 कनाल का प्लॉट बहरिया इनक्लेव के अंदर अवेलेबल है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्राइस है पार्क व्यू सिटी की, वो इस वक्त जब वहाँ पे ग्राउंड वर्क के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क तो बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन जाहिर है एक इस्टेब्लिश कम्युनिटी जहाँ पे लिविंग ऑलरेडी हो रही है, एक एंड कंज्यूमर वहाँ पर मौजूद है, उसके साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये एक पॉइंट है कि इन्होंने जो अपनी स्टार्टिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, वो बहुत हाई एंड रखी है। सो इन्वेस्टर्स को ज़रूर इन्होंने अट्रैक्ट किया है इतनी हाई एंड प्राइस के ऊपर, लेकिन मैं ज़रा आई एम अ बिट स्केप्टिकल अबाउट कि इन्वेस्टर्स का गेन जो है वो इसके अंदर 2-3 साल के अंदर अगर हम देखें, क्योंकि 2 साल का तो इनका डेवलपमेंट प्लान है, 2 साल के बाद कुछ सेक्टर्स के अंदर इन्होंने पोजेशंस ऑफर की हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको एक पॉपुलेट होते हुए, इस कम्युनिटी को डेवलप होते हुए अराउंड 3 to 4-5 ईयर्स जो हैं वो लग जाएंगे। उसके बाद ही ये एक कंप्लीट कम्युनिटी बन सकती है जिसको हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इंक्रीज प्राइसेस के अंदर आ सकता है। सो आई थिंक प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ज़ाहिर है एक बहुत अच्छी अट्रैक्शन है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपनी फ्यूचर में इस्लामाबाद के अंदर अपना एक घर बनाना चाहते हैं। बहरिया इनक्लेव में तो ज़ाहिर है वो 1 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर या आपको कैश के ऊपर प्लॉट लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको वही प्लॉट जो है वो 3 सालों की फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर उस प्राइस के अंदर अवेलेबल है। फिर एक दूसरा थोड़ा सा बात यह है कि प्राइसेस जो है वो बड़ी इन्होंने पिछले दिनों 5 लाख रुपए इंक्रीज भी किया प्राइसेस का, और इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि प्राइसेस जो है वो चेंज हो सकती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आई थिंक ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो अपना घर वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के अगर अदर एरियाज को देखें तो वो बहुत कॉस्टली हो चुके हैं। किसी ऐसी कम्युनिटी में रहना जो कि हाई एंड कम्युनिटी भी हो और उसके साथ साथ जो एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर भी वहाँ पे अकोमोडेशन रेजिडेंस जो है आप बना सकें। सो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो वहाँ पे अपना घर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मेरी नज़र में 2-3 साल के अंदर इसके अंदर प्राइसेस के अंदर कोई मेजर फ्लक्चुएशन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके कंपैरिजन में बहरिया इनक्लेव के अंदर पिछले 3 साल के अंदर कोई मेजर गेन देखने को नहीं मिला। हो सकता है आने वाले दिनों में रियल एस्टेट मार्केट के अंदर कुछ जो है वो एक्टिविटी बढ़े तो उससे कुछ गेन जो है उसका एस्टैब्लिश हो सकता है। तो मेरे ख्याल में दिस इज द ओवरऑल होलिस्टिक एनालिसिस ऑफ पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द अपकमिंग अपडेट्स एंड एनालिसिस। इंशाल्लाह आपके साथ किसी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।